एल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो सब कार्बोक्सिलिक के भी ज्यादातर फॉर्मेशन रिएक्शन में भी होंगे ना, क्योंकि उसमें कार्बो कार्बो वाले बन क्या क्या फिर से बोलो। वो जो Okay, I think I should repeat it once. Oxidation of alkene or benzyl using ACO2 to form allylic or benzylic alcohols. ACO2 and then treatment with H2O gives rise to introduction of hydroxyl group at allylic or benzylic position. Allylic or benzylic position. So then there is alkyl halide whose hydrolysis in basic medium for 1 and 2 degree carbons it will generally be a SN2 process. For 3 degree it is going to be 3 degree allylic or benzylic, it is going to be SN1. ठीक है, allylic के साथ में it is going via SN1 and therefore you have a al sorry first allylic rearrangement and then you have methyl shift which is taking place to form this alcohol. Now 3 degree के साथ में there is a problem also. I mean there is some inherent problem with 3 degree alkyl halide. If we are going to use a 3 degree RX, ठीक है, directly with aqueous KOH, so the yield of alcohol will be very poor, and the side reaction, that is elimination reaction, formation of alkene will become a substantial reaction. ठीक है, yield of alcohol will diminish and formation of alkene will become a parallel reaction. Am I making sense? डोमिनेंट नहीं होगा बट ईल्ड को काफी, अल्कोहल फॉर्मेशन के ईल्ड को काफी कम कर देगा। ठीक है, अभी इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि we treat this RX, 3 degree RX is first treated with CH3COO minus Ag plus to form an ester, then ester is hydrolyzed in basic medium to form 3 degree alcohol.
ठीक है, if 3 degree Rx is directly treated with aqueous KOH, the alkene formation through elimination becomes a substantial reaction diminishing the yield of 3 degree alcohol. ठीक है, so we can take a example C2H5 triethyl and maybe NEX can be treated with first CH3COO minus Ag प्लस. अगर इसको डायरेक्टली ट्रीट करेंगे तो एलिमिनेशन होएगा पक्के से, मतलब एलिमिनेशन भी एक प्रोडक्ट देगा. टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो एलिमिनेशन विल बिकम द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, okay, this is going to give us CH3COO, then you have C, ET, ET and ET. This upon OH minus aqueous, we tend to get C, ET, 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 OH plus CH3CO minus. ठीक है, the next reaction is going to be with halide. We can form Rx can be treated with Mg in dry ether to form RMgX, which can be treated with O2 to form ROOMgX. This can be treated with H2O to form ROOH. MgOH This can be treated with lithium aluminium hydride
or maybe triphenyl phosphine to form ROH plus H2O. ROH plus H2O. Okay. The next formation steps are from carbonyl, and acid derivatives. Grignard synthesis. The same list will be reiterated here again, right? This will form RCH2OH 1 degree alcohol. Two-degree alcohol from aldehyde and 3 degree alcohol from ketones. Three-degree alcohol
यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना होता है, जस्ट हाइड्रोलिसिस के टाइम पर एसिड जो यूज कर रहे हैं हम लोग ना, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के टाइम पर जो एसिड यूज कर रहे हैं, स्पेशली जब हम किसी अल्डिहाइड को यूज कर रहे हैं, अदर अल्डिहाइड्स, यानी 2 डिग्री अल्कोहल बनना है, या फिर केटोन को यूज करके 3 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं, तो यहाँ पर एसिड जो यूज करेंगे दैट हैज टू बी वेरी वीक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, या फिर मे बी अमोनियम क्लोराइड जैसी चीजें यूज कर सकते हैं, जो कि खुद हाइड्रोलिसिस के बाद इट विल बिकम वेरी स्लाइटली एसिडिक सिस्टम, ठीक है। और उसकी एसिडिटी में इन लोगों को हाइड्रोलाइज करते हैं। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, व्हाट कैन हैपन, suppose if we are going to use H2SO4 for hydrolysis, so what byproduct are we going to expect in this process? Apart from alcohol, we will have substantial amount of alkene which is going to get formed, right? Strong acids अगर हमने लिया, जनरली डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं वो लोग, एंड दे आर गोइंग टू dehydrate these 2 degree and 3 degree alcohols. Am I making sense? सर। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट कर लेंगे हम लोग। चलो नीचे में नोट कर दूंगा अभी के लिए, अगला रिएक्शन, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? एल्डिहाइड कीटोन तो हो गए सारे। वी कैन हैव R dash C double bond O and X, ठीक है। इनमें एक्चुअली हाइड्रोलिसिस की जरूरत तो पड़ती नहीं है हमको, सिर्फ वाटर डालना होता है, वाटर डालो एंड you get your final product. So we can have something like R dash C double bond O R followed by further treatment with or one more equivalent of RMGX being put, we may have this thing as a final product. एक सेकंड, the next reaction could be with or is with the second derivative, that is ester. This is acyl halide. Right. Then we have ester, RC double bond O OR dash, maybe double and single.
So in first step we are going to have R dash C double bond O R plus R double dash OH. We can write it like this. This further on treatment of RMGX and H2O. OH. Ester के बाद we can have anhydride R dash C double bond O O C double bond O R double dash. First of all, it will create RC double bond OR, and there will be an additive product R double dash C double bond OOH. This upon treatment with this part can be treated to make it RMGX and H2O to form again R dash COH R and R. This can be treated with this alcohol to form a ester again, एंड ईस्टर फॉर्मेशन के बाद फिर से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं आरएमजीएक्स से टू कन्वर्ट विदाउट ईस्टर कन्वर्सन दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड विद दिस इनफैक्ट इसको हमको बाहर निकालना पड़ता है दिस हैज टू बी ब्रॉट आउट ऑफ दिस सिस्टम या फिर इसको हमको दोनों को सेग्रीगेट करके फिर हमको करना पड़ेगा इसके प्रेजेंस में आरएमजीएक्स डालेंगे कोई फायदा नहीं होगा ठीक है दिस एटलीस्ट दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस the other derivative was R dash C triple bond N इसमें क्या बना था R dash C R double bond NH further treatment with water यहाँ पे दो अलग प्रोडक्ट बने थे या सेम प्रोडक्ट बना था रिमेम्बर किसी को ध्यान है डिपेंडिंग अपॉन स्टेप्स अलग अलग प्रोडक्ट बने थे सेम प्रोडक्ट बना था सेम बना था so end product is going to be the same the thing is सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या हैं अगर इसको यहाँ पर H2O के साथ हमने ट्रीट किया तो अल्डिहाइड सॉरी केटोन बन जाएगा हमारा फिर RMGX हम डाल सकते हैं या फिर इस स्टेप पे भी RMGX डाल सकते हैं तो हमारा 3 डिग्री अमाइन बनेगा और फिर उससे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा सो इन एनी वे it is going to create 3 degree alcohol the end product is going to be 3 degree alcohol only ठीक है यहाँ पर H2O H plus कर लेते हैं तो it will become R dash C double bond O R plus NH3 this upon treatment with RMGX and H2O become R dash C R and here we'll have to put R and OH ठीक है और एक रिएक्शन और है रिएक्शन क्या है वो इनका है नहीं
बेसिकली एपॉक्साइड रिएक्शन, एपॉक्साइड का भी RMGX आके अटैक कर सकता है ना, और उसमें भी हमको क्या बनाएगा, RMGX का अटैक क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाता है, राइट ना। और किस पर करता है अटैक RMGX, आर किस पर अटैक करता है एपॉक्साइड के केस में, लेस हिंडर्ड या मोर हिंडर्ड कार्बन, लेस वाले पे, हाँ लेस वाले पे। लेस हिंडर्ड पे SN2 जाता है, लेस हिंडर्ड पे अटैक करता है. So I can actually continue it over here, and do it like this, RMGX plus CH3 CH2, and I have a epoxide. The medium which I need to take is basic. So RMGX can, sorry, there will be an O. This will react and produce CH3, CH, CH2, R and OH. ठीक है, R does attacks on less hindered carbon and epoxide. ठीक है, ओके. स्टेरिकली हिंडर्ड केटोन्स के साथ RMGX इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है. स्टेरिकली हिंडर्ड केटोन्स के साथ RMGX does not add on it like this, ठीक है, उसके ऊपर RMGX का एडिशन नहीं होता है. मेकिंग सेंस. नेक्स्ट थिंग इज, the next set of reactions is going to be the fifth one, from primary
amines, right? प्राइमरी अमाइन से कैसे बनेगा? RX can be treated with ammonia to form primary amine RNH2. Now, RNH2 इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल जो है OH माइनस, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्या या नहीं हो सकता है? हो सकता है तो कैसे होगा, क्यों होगा? नहीं होगा तो क्यों होगा? कैन वी गाइस थिंक इन दिस डायरेक्शन? You can also keep in mind the living tendency of maybe H2 and NH3 to build up your logic. Yes. Yes. हेलो. हाँ सर, नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन. नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन. ओके, बाकी लोगों का क्या सोचना है? हेलो, am I audible to all of you? हाँ सर. हाँ, तो मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा?
हाँ, बाकी लोग कुछ बोलेंगे या सोना है? हेलो, am I audible? बोलेंगे हम लोग? हाँ सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाकी लोग कुछ बोलेंगे या आज मौन व्रत है हम लोगों का? आज तो बस रहने दो सर, आज शुभ मुहूर्त नहीं है बोलने का, कल से बोलेंगे हम। चलो बोलो, महेश बोलो। जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। NH2 लिविंग ग्रुप नहीं, NH3। हाँ ठीक है। शुभम। हाँ सर। व्हाट्स योर से? तुम कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे? इफ यू कैन और इफ यू वांट टू। लिविंग टेंडेंसी बहुत कम है। ओके। लिविंग टेंडेंसी इसकी काफी वीक होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी इनफैक्ट RO CO बॉन्ड से CN की बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटर होती है। इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लिविंग टेंडेंसी ऑफ इसकी अमोनिया की कम होती है विथ रेस्पेक्ट टू H2O। ये डायरेक्ट रिप्लेस तो नहीं हो सकता है। जो भी काम हमारा सीधा सीधा नहीं होता है उसको फिर हम थोड़ा सा टेढ़ा करके करते हैं। ठीक है, टेढ़ा क्या करते हैं इसके अंदर में कि नाइट्रस एसिड जो होता है ना, HNO2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं इसके अंदर। सो वी आर गोइंग टू पुट इट, और ये इतना प्यारा सा कॉम्बिनेशन होता है कि इट फॉर्म्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायजोनियम। क्या बोलते हैं? डायजोनियम। मेनी अ टाइम्स सॉल्ट भी बोलते हैं उसको। डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। दिस इज मोस्टली आयनिक। ये पार्ट कोवैलेंट, और ये इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये प्राइमरली आयन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और डायजोनियम कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो। ठीक है, NH2 के साथ HNO2 को रिएक्ट करा देते हैं। HNO2 बहुत प्यार से इसके साथ रिएक्ट करता है और हर जगह डायजोनियम देता है। ठीक है, अल्काइल डायजोनियम जो होते हैं, अल्काइल डायजोनियम, they are highly unstable, and they break down as soon as they form. ठीक है, alkyl diazoniums are highly unstable and they break down as soon as they are formed. फिनाइल या बेंजाइल डायजोनियम जो होता है, फिनाइल डायजोनियम या अराइल डायजोनियम जो होता है वो थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल होता है। ठीक है, तो उसको अगर हमको सिमिलर तरीके से ब्रेक करना होता है तो वी हैव टू एक्चुअली प्रोवाइड सम एनर्जी। थोड़ा टेम्परेचर हाई करना होता है या फिर स्टीयरिंग वगैरह करनी होती है, कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी हमको करनी पड़ती है।
अल्काइल डायजोनियम जो होता है उसको ऐसी कोई भी एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट कर जाता है। डिसइंटीग्रेट करेगा तो बनाएगा क्या? डायजोनियम, अल्काइल डायजोनियम या अराइल डायजोनियम, ठीक है, दोनों में से कोई भी जो भी होगा वो हमेशा N2 प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? N2 रिलीज कर देता है और फिर ये R प्लस के फॉर्म में, कार्बोकैटायन सेंटर के फॉर्म में रह जाता है। इट बिकम्स अ R प्लस, ठीक है। अब ये R प्लस के जितने रिएक्शन हो सकते हैं, कार्बोकैटायन के जितने रिएक्शंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे रिएक्शंस ये आराम से देता रहेगा विथ सुटेबल रिएजेंट्स, ठीक है। So it can be treated with maybe with any nucleophile, any nucleophile of our choice to make RNU. It can be treated with specifically like maybe water, to form ROH. It can be treated with H minus hydride to form RH. Basically H minus में we are talking about लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड के वही सोर्सेस हैं हमारे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, LiAlH4 और NaBH4, ठीक है। और maybe we can remove an H plus to generate a alkene, minus H plus, extraction of H plus to generate alkene, ठीक है। These are the courses which can be followed after formation of R plus. इसका रिएक्शन कैसे होता है? जस्ट एक सेकंड, इसका रिएक्शन कैसे होता है इसका एक ग्लिम्स में बता देता हूं आप लोगों को। सी, ये HNO2 जो होता है वो कैसा दिखता है? राइट, ये ऐसा ही कुछ दिखता है। Yes, sir. ओके, सो अभी HCl जो एसिड है वो एक्चुअली HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO2, इनफैक्ट HNO3 से भी स्ट्रॉन्गर है। So what will happen is it will accept a proton from HCl and it will accept a proton from HCl to form ठीक है। और फिर फाइनली ये वाला बॉन्ड जो होगा इधर आ जाएगा और अल्टीमेट चीज जो बनेगी वो क्या बनेगी? N डबल बॉन्ड हो विथ अ प्लस साइन, और ये सिंगल बॉन्ड जो था चला गया और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। दिस विल बी देयर एंड प्लस H2O हो जाएगा ये,
ये बात समझ में आ रही है हम लोगों के? Yes, sir. ठीक है ना? फाइन। अब ये NO2 जो है, ये जहां पर भी C के साथ नाइट्रोजन अगर है, के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है ना? तो N डबल बॉन्ड O एंड प्लस लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट होएगा, डिफिशिएंट सेंटर है इसलिए डोनेशन लेने में इसको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इट विल बी हैप्पी टू गेट इट, राइट? व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट? प्लस चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा, ये एक H जो है इससे लोन पेयर लेकर के इस तरीके का साइक्लिक ट्रांसफर होएगा। बात समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। Nitrogen double bond O with a lone pair. The plus charge will come here. Now अभी क्या होगा? Actually this bond will shift between carbon and oxygen and hydrogen, and this bond will go over here. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को Yes, sir. या कोई प्रॉब्लम? फर्दर नेक्स्ट स्टेप में, so this will become C N H N single bond O and H and lone pair, ठीक है? यहाँ पर एक वापस से प्लस चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, N का बॉन्ड ओपन होएगा तो N के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और फिर से N का जो लोन पेयर है वो सेकेंड वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? सेकेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सो इसका लोन पेयर वापस से इनिशिएट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन, इस बॉन्ड फॉर्मेशन से ये वाला लूजली पैक्ड होएगा, ये यहाँ ट्रांसफर होता है, ये लोन पेयर देता है इसको, ये बॉन्ड ओपन हो जाता है, ठीक है? दिस इज अगेन IMPT, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ पर भी इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर बन क्या गया? H2O एक बन गया, ठीक है? और इधर हमारा डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, लोन पेयर और प्लस चार्ज, ठीक है? ये तीन चीजें रहेंगी इसके ऊपर। फाइनली ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आकर के इट फॉर्म्स दिस स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज मोर स्टेबल, तो यहीं रह जाता है, और दिस वन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? ये यहीं फॉर्म होगा, ठीक है ना? अगर कोई डाउट हो रही है तो वी कैन ब्रेक इट इनटू स्टेप्स, ठीक है? पहले स्टेप में यहाँ पर लोन पेयर आया, लोन पेयर आया तो इसका पॉजिटिव चार्ज गुल हो गया, ठीक है?
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने बॉन्ड पेयर ब्रेक किया, अपनी तरफ पुल किया, तो H के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। लोन पेयर दिया H को, तो O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। उस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर को O अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर से N पर घूम करके प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना? आर वी गेटिंग दिस साइकिल? ठीक है। हेलो, हाँ सर। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? ओके, ये देवांग कहाँ गायब हो गया? चलेगा। सो बेसिकली ये डायजोनियम होता है और ये डायजोनियम की टेंडेंसी होती है। अब देखो, इसमें ये रहता है कि अगर इधर रेजोनेटिंग सिस्टम कोई है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके इसको स्टेबलाइजेशन, ये वाला बॉन्ड जो होता है ये सिंगल बॉन्ड की तरह ना बिहेव करके थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगा। अभी sp3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड इज वीक, तुरंत खुद से ये इतना अनस्टेबल होता है कि खुद से ब्रेक कर जाता है, और ये R प्लस बनाता है, जिसको कि हम अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करके अपने हिसाब से डिजायर्ड प्रोडक्ट ला सकते हैं। ठीक है, गुड। सो दैट इज समथिंग। आफ्टर दैट वी हैव रिडक्शन ऑफ carbonyl and carboxylic acid derivatives. They can be reduced to carboxylic acid derivatives, or carbonyl compounds can be reduced to produce uh, alcohols. ठीक है ना? So the next thing we are going to discuss is reduction of carbonyl and carboxylic acid derivatives. Okay. Now the two major reducing agents are LiLH4. ठीक है, पहला जो होता है वो होता है रिडक्शन बाय रिडक्शन बाय LiLH4. ठीक है, this takes place generally in dry ether. Not generally, it takes place mandatorily in dry ether. और ड्राई, एक्चुअली ड्राई ईथर में सारी चीजें आ जाती हैं, एक्सक्लूसिवली बोले तो THF, tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran itself is an ether. It's an example of ether.
ठीक है, कोई भी ड्राई ईथर या THF that can do well. The temperature has to be maintained quite low, 0 degree Celsius. Now this reaction basically होता क्या है कि H minus ये देता है और H minus can actually वर्क आइदर एज अ न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे जरूरत है, और नहीं तो हाँ बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करता है। कहीं पर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है तो सब्स्टिट्यूशन कर देता है, और कहीं पर एडिशन की जरूरत होती है तो ऐड हो जाता है। कार्बन जो डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड होता है, और दैट कार्बन इज एक्चुअली positively polarized, so it can attract H plus which is being generated in the system and will get attached. तो इस तरीके से ये प्रोसेस इनिशिएट होता है एंड देन फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो व्हाट हैपेंस इज LiAlH4 can react with multiple things, ठीक है। I'm going to give the list to you guys. Okay, so we have 5-6 things which can react with LiLH4. All of them are going to give alcohol, और उसके बाद 3 चीजें और होती हैं जो रिएक्ट कर सकती हैं लेकिन वो अल्कोहल नहीं देती हैं। 1 2 3 4 5 नहीं आ पाएगा। वेट, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं। दिस इज LiAlH4 and it can react with aldehydes, ठीक है, and it will produce, अरे एक काम करता हूँ, अगले पेज पे चले जाता हूँ। Let it be. LiAlH4 and so R C double bond O and H. This will form RCH2OH, ठीक है, 1 degree alcohol. The second one is to be reacted with RC double bond OR dash ketone to give 2 degree alcohol. Then RC double bond OX to give again
CH2 OH, CH2 OH. This is 1 degree, this is 2 degree, this is 1 degree again. The next one is epoxide. इसको नोट कर लो, एक सेकेंड में आता हूँ. यस, हेलो. सी देखो, ये इजीनेस टू रिड्यूस रिडक्शन जो है ना, that is, I mean, kind of primarily dependent on the delta positive which we have generated at the carbon center. जिसमें ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है, that is faster और easier to reduce. और जैसे जैसे वो कम होता जा रहा है डिलोकलाइजेशन या किसी भी XYZ प्रोसेस की वजह से, the level of reduction or easiness of reduction is getting hampered. Making sense? क्लियर है? ओके. अब LiLH4 के बाद, LiALH4 के बाद, the next thing which gets, I mean, which does reduction is NaBH4. ठीक है? NaBH4 के साथ क्या होता है? I mean, what happens is it can only reduce these first three things. ठीक है? NaBH4 जो है, NaBH4, that can reduce only top three things. It is a relatively weaker, ये reducing agent, and hence it is just able to reduce only top three of them, not all of them. ठीक है? LiLH4 जो है, that is a stronger one, and it can reduce the entire series. Making sense? But NaBH4 being a weak reducing agent than LiALH4, it is able to reduce only top three of them. ठीक है? So this is something we will note down. अच्छा, एक सेकंड. अच्छा ठीक है, इसको नोट, दोनों को नोट करने के बाद कर लेते हैं. रिडक्शन बाय NaBH4. ठीक है? NaBH4 can react with only top three of them to produce alcohols. First one is RC double bond OH, then RC double bond OR dash, RC double bond O and X. And each case it will, I mean, not in each case. First case में it is going to produce 1 degree alcohol. Second case it will produce 2 degree alcohol, and in this case it is again going to produce CH2 and OH 1 degree alcohol.
ठीक है, कॉमन पॉइंट्स वेट ओके, LiAlH4 and NaBH4 both reduces by donating H minus under ionic mechanism. ठीक है, LiAlH4 is a stronger reducing agent than NaBH4 as LiAlH4 generate H minus with greater easiness than NaBH4. Greater easiness and at faster rate. And at faster rate than NaBH4. Okay. अच्छा, one more thing I just missed. यहाँ पर ऊपर में LiLH4 वाला जो था THF एंड 0 डिग्री या ड्राई ईथर एंड 0 डिग्री था ना, इसको हमें एक्चुअली पोलर प्रोटीक में लेना होता है. रिडक्शन बाय NaBH4 इन ETOH और H2O at STP. ठीक है, so the condition are more vigorous, yet it is able to just reduce 3 of them. ठीक है, और यहाँ पर एक चीज छोटी सी, एक आध दो एग्जांपल्स हैं थोड़े से यूनिक वाले. एक्चुअली यूनिक वाले नहीं, मैं कुछ और ढूंढ रहा था कहीं से तो कुछ तो मिल गया. ठीक है, इट इज नॉट दैट greatly important, but still we can just write it down. There is something called Lauche reagent. This is just for information. ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन है वो आप लोग देखोगे तब पता चल जाएगा. Suppose I have a compound like this. I mean, it's a real time example. COOMe, and this compound is like this.
has a double bond over here, and Loche reagent is nothing but sodium borohydride, okay, dot cerium trichloride. ठीक है ओए, and you put this catalyst, or sorry, this reagent NaBH4 dot CCl4, ठीक है. It is predominantly going to reduce the carbonyl bond, ठीक है, without touching the double bonds, exclusively carbon oxygen double bond, and not at all touching the this thing, carbon carbon double bond. This is the major product, ठीक है. नॉर्मल NaBH4 को अगर हम लोग लेते हैं जनरली, तो नॉर्मल NaBH4 जो होता है वो इन जनरल 1,4 एडिशन करता है. अगर ऐसा कोई सिस्टम हमको मिलता है तो 1,4 या 1,6 एडिशन करेगा. बीइंग अ वीक, जो चीजें वीक होती हैं, स्लो होती हैं, दे आर गोइंग टू बी मोर सेलेक्टिव, ठीक है. जो चीजें फास्ट होती हैं वो कम सेलेक्टिव होती हैं. आद्या, those things which are more selective, more reactive are less selective, and anything which is less reactive is more selective, ठीक है. So जाओ मामा को के पास. So यहाँ पर ये होता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग 1,6 एडिशन, एक इसके ऊपर और एक यहाँ पर, एंड कॉन्जुगेशन में ये शिफ्ट होने के, it actually happen that 1,2 addition is being preferred. जनरली NaBH4 जो है उसका काम होता है 1,6 या 1,4 एडिशन करता है, ठीक है. इस केस में ये 1,2 एडिशन कर रहा है, दैट इज वाई. सो यहाँ पर इस चीज को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो. इट इज अ थिंग विच आई विल बी डिस्कसिंग सेपरेटली व्हेन वी विल बी डूइंग अल्डिहाइड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स. ये वहां के लिए ज्यादा रेलेवेंट एग्जांपल होएगा. यू कैन एक्चुअली लीव इट फॉर नाउ, ठीक है. इफ यू गाइस वांट यू कैन लीव इट. जस्ट इसको वहां पे रखेंगे तो इट विल बी बेटर. ठीक है. Okay. The next reduction is, or the next reduction process is known as Bauval, Bauval, Bauwalt blank reduction. Now, इसके अंदर में क्या होता है कि the third reduction process is Bauwalt blank reduction, ठीक है.
द गुड थिंग इज इसमें ये एक पर्टिकुलर Na प्लस अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। Na प्लस ROH को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। एक बार याद है अल्काइन आया था, उसमें Na प्लस ROH मैंने लिख दिया था एज अ रिएजेंट और बोला था कि अभी मत करो, बाद में करेंगे इसको। हेलो, हाँ सर। याद है आप लोगों को क्वेश्चन, वो क्रॉस किया था, क्रॉस करके आप लोग को भेजा था, ठीक है, फोटो लेकर के भेजा था पेपर पे लिख करके, हाँ ठीक है। उसमें ये Na प्लस ROH एज अ रिएजेंट मैंने यूज कर दिया था, तो ऑब्वियसली गलत नहीं था वो, उसमें प्रोडक्ट बनेगा, बट थिंग ये है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और उसका Na प्लस ROH का क्या रोल है वहां पे, दैट वाज नॉट क्लियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए मैंने बोला था कि अभी के लिए रहने तो, बाद में हम करेंगे। नाउ यू आर गेटिंग एक्सपोज टू इट अ बिट, रिएक्शंस में थोड़े और ज्यादा एक्सपोज हो जाओगे इस पर्टिकुलर चीज से। तो बाउवैलेंट, बाउवैलेंट बोल रहा हूँ यार, बाउवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन के अंदर द रिड्यूसिंग एजेंट वी यूज इज अल्कोहल विथ सोडियम, सोडियम विथ अल्कोहल, ठीक है ना। रिड्यूस किस किस चीज को कर सकता है, तो दिस कैन रिड्यूस अल्डिहाइड, केटोन एंड ये ईस्टर, ईस्टर, अल्डिहाइड एंड केटोन, ये तीनों को ये रिड्यूस कर सकता है। बेसिकली होता क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड बेसिकली ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम लोग ईस्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाय द एड ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। इसमें ये बेसिकली ये जो चीज यूज करते हैं ना, ये बहुत ही सस्ती चीज होती है, अल्कोहल इज क्वाइट सस्ती चीज एंड बहुत इजीली अवेलेबल भी है हमारे पास, लगभग हर सुगरी मटेरियल में वी कैन वेरी इजिली फर्मेंट इट एंड डेवलप अल्कोहल्स, ठीक है, जितने का काम है उतना निकाल सकते हैं। इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड, सॉरी कॉमनली अवेलेबल थिंग, और इसकी वजह से किसी भी रिएक्शन प्रोसेस में इसको यूज करना हमारे लिए काफी कन्वीनियंट रहता है। रिएजेंट इजीली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव या लेस कॉस्टली रहा तो हमारा प्रोसेस या एंड प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों ही लेस कॉस्टली हो जाएंगे। दैट इज वेयर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस फाइंड्स अ ग्रेट एप्लीकेशन। ये प्रोसेस जो है, आई मीन नॉर्मल तो ठीक है, ज्यादा यूजफुलनेस इसकी जो है दैट इज इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका ये ज्यादा है, ठीक है। और वैसे इंडस्ट्रियल में क्या, इंडस्ट्रियल में अल्डिहाइड, केटोन या एसिड वगैरह से हम लोग बनाते नहीं है, बनाने का वहां पे कुछ दूसरा मेथड रखते हैं हम लोग। और अल्कोहल्स वगैरह जनरली इससे बनता ही नहीं है, इस मेथड से बनता नहीं है। इस मेथड क्या, इनमें से कोई मेथड से नहीं बनता है, ये सारे लेबोरेटरी मेथड है। अल्कोहल जनरली हमारे जो बनते हैं वो शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट से बनाते हैं हम लोग हर जगह पे, एंड इनमें से कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर काम में नहीं लाते हैं हम लोग। इंस्टेड हम लोग ईस्ट वगैरह को यूज करते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू हम उसको डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मेथड जो हैं वो मोर और लेस ऐसे मेथड्स हैं जो लेबोरेटरी में ही यूज होने हैं, चलेगा। सो तीन रिएजेंट जो, सॉरी तीन सबस्ट्रेट जिसको हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, वन इज एल्डिहाइड, अल्डिहाइड, केटोन एंड ईस्टर, ठीक है।
All of them can be treated directly with Na plus ROH to produce R OH, sorry, R CH2OH plus R dash OH. ठीक है. This method is used as an alternative to expensive NiLH4 reduction. Acid carboxylic acid or acid derivatives are converted ester first and then treated with NaROH mixed to generate alcohols by reduction. If sodium hydride is used instead of sodium, it gives better yield. The next reduction is catalytic reduction. निकल के साथ हाइड्रोजन निकल okay. Catalytic reduction using H2Ni.
temperature up to 250 degrees Celsius and high pressure between 150 to 200 atm. Okay. उसमें not only this, it can be R C double bond OR dash. It can be R C double bond OOH, R C double bond OO, C double bond O R dash, and the ester R C double bond OR dash. All of them can actually react with. Yeah. Okay. The reactant is going to be H2 nickel Rene and a temperature of around 250 degrees Celsius and pressure of 150 atm approx. ठीक है? All of them are going to produce alcohols. ठीक है? This will produce single alcohol RCH2OH. This will produce RCHR-OH. This will produce RCH2OH. This will produce two sets of RCH2OH plus R dash CH2OH. This will produce RCH2OH plus R dash OH. ठीक है? यहाँ पर एक चीज और होता है. If I have a ester, suppose I have a ester and I use H2 nirene, okay, and I maintain a temperature above 250 degrees Celsius. Up to 250 pe we get this products. Above 250 degrees Celsius and 150 atm pe we start getting something else, and that something else is RCH3 plus R dash H. सीधे अल्कीन बन जाता है. बात समझ में आ रही है? This becomes the major product. Alcohols बनेंगे ऐसा नहीं बनेगा, but this becomes the major product. Is it okay? The next set of reaction is even
copper can reduce reduction of ester using H2CO at 200 degrees Celsius and 150 to 200 atm pressure. So RC double bond OR dash H2CO 200 degrees Celsius and 150 to 200 atm pressure, and we get RCH2 OH plus R dash OH. ठीक है. See, हर जगह पे I mean we have three catalyst या reagent जो बोले जो ईस्टर्स को रिड्यूस कर रहा है, एंड it start with sodium in alcohol, sodium and alcohol Bauwalt blank reduction, Bauwalt reduction, and then you have H2Ni reduction with the help of H2Ni, and then we have H2Cu reduction. ये तीनों में मतलब H2Ni में अदर रिएक्टेंट्स में वो भी रिड्यूस होते हैं, Cu वाले में सिर्फ ईस्टर का रिडक्शन होता है, और ईस्टर रिड्यूस जब भी हो रहा है तो इट इज रिड्यूसिंग इन टू सेपरेट ये अल्कोहल्स, आर एंड आर डैश के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में वो रिड्यूस हो रहा है. एंड ठीक है, बस यहाँ पर एक्सेप्शन ये हो रहा है रेनी निकल के साथ में कि अगर टेम्परेचर 250 प्लस पे हम ले जाते हैं अराउंड 280 या 300 पे, तो ये डायरेक्टली अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट अल्कोहल. ठीक है. और there is one more reduction process, that is with the help of diborane. ठीक है. So the sixth reduction process is with the help of diborane. Reduction by diborane. B2H6
So this is the last set of reduction reaction which is there. Uh, okay. The last set of process of preparation. There are 3-4 miscellaneous processes. लेक्चर कब तक है? जब तक खत्म नहीं होगा अल्कोहल तब तक पढ़ाऊंगा. Miscellaneous. The first one is natural gas plus O2. This is CH4 plus O2. This gives a mix of various alcohols. C2H5OH and other higher alcohols. ठीक है, ये होता है इंडस्ट्रियल मेथड. और भी है एक इंडस्ट्रियल मेथड. अब ये बन जाते हैं, इसके बाद इनको बैठ के सेपरेट करते रहिए. ठीक है, ये एक दूसरा मेथड होता है इंडस्ट्रियल. where carbon monoxide is treated with hydrogen to produce again mix of multiple alcohols. And the third method is going to be oxo or hydroformylation. ये दोनों ही हैं, ये भी इंडस्ट्रियल है और ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है. प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस नहीं होता है, यील्ड के ऊपर फोकस ज्यादा होता है. प्योरिटी हम बाद में देख लेंगे. बेसिकली इंडस्ट्रीज में हमेशा यही रूल अप्लाई होता है. अनटिल एंड अनलेस बहुत स्पेसिफिक यूज के लिए कुछ बना रहे हैं हम लोग. olefin plus CO plus H2 at around 200 atm, 125 to 145 degrees Celsius. We can use cobalt, thoria or magnesia as catalyst. This is again going to give a alcohol mixture. Alcohol mixture. ठीक है. Is it okay? So these are the preparation methods. ये लास्ट में जो लिखा है इसका हमारे एग्जाम पर्पज से, बोर्ड एग्जाम पर्पज से जो थोड़ा मोड़ा यूज है
अदरवाइज इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो भी मिक्सचर बनता है ये सबको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे? द ओनली मेथड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वी सेपरेट separation of mixture of alcohols using fractional distillation method. Okay. ठीक है. We can disperse for today at this place. इसमें नए क्या क्या मेथड्स, बट निकलने के पहले हम लोग थोड़ा सा जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं. नए क्या क्या मेथड सीखे? नया कौन सा मेथड सीखा हमने जो पहले नहीं जानते थे? जैसे अल्कीन वगैरह के केसेस में या फिर हलाइड्स वगैरह के टाइम पे हमने जो मेथड्स या प्रोसेसेस नहीं देखे थे, वैसे कौन कौन से मेथड्स हमने सीखे आज के दिन में? या बेसिकली आप जब याद करने बैठेंगे तो नया क्या याद करना है आपको? लिखा तो बहुत सारा हमने, बट नया एडिशन क्या क्या रहा आज के दिन के लिए? नोट्स देख करके एक बार समराइज करेंगे, या ठीक है नहीं करने का मूड है तो रहने दो, घर पे जाके वैसे ही पढ़ना तुम लोग, मतलब इसी तरीके से पढ़ते हो तो फायदा रहेगा. कल मैं पूछूंगा, ठीक है? कल शाम को भी है लेक्चर ना हमारा? नहीं है सर, आपने कल फिजिक्स लेक्चर कौन से टाइम पे रखा है? फिजिक्स लेक्चर हाँ, सुबह आपने लिखा है 9:30 AM to 9 AM। 9:30 AM लिख दिया है क्या?